सर आप इधर आकर बैठो, यहाँ 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 मैं इसी से इंट्रोड्यूस करा दूंगा बगैर यहाँ पर प्रिंट रख दो उसमें 2 मिनट बाद दिशा और पढ़ दें। स्टूडेंट भी इसके पहले एमएल बेसिक्स वगैरह हो गया है ना, सिंपल कोड वगैरह लिख लेते हैं। प्रैक्टिस किए कभी? ये जनरेटिव मॉडल्स भी कुछ डिस्कस हुआ है, कल हुआ था। और ये जैसे लोकल सिस्टम में अगर जनरेटिव मॉडल ये करना हो, रन कराना हो, तो जैसे चैट जीपीटी हम देखते हैं बाहर से, अगर हम अपने लोकल सिस्टम में चैट जीपीटी बनाएं मतलब उसके इंस्टेंसेस क्रिएट करें, ये सब आइडिया है ओलामा के थ्रू है आइडिया। संजीव अपना मोबाइल लो यार, नहीं खुल रहा, लो मोबाइल नहीं खुल रहा है, अपना आप ले आइए, फोन कर लीजिए। फाइल कर लिए थे, शूटिंग में डाल दीजिए और फाइल लो मोबाइल नहीं Good morning to all of you. So our resource persons have joined here. So firstly, I am going to introduce about him. Dr. Jyoti Prakash Singh is an associate professor in the Department of Computer Science and Engineering at the National Institute of Technology, Patna, India. He has co-authored 8 textbooks and 2 edited books. He has published 106 international journals publication in ACI index journals of reputed publications such as IEEE, ACM, Springer, Elsevier, Taylor and Francis, etc. He has also published more than 100 international conferences proceedings. Under him, 18 PhD scholars have completed their research. He has 8 Indian patents granted in the field of malware analysis for mobile devices, and 3 patents are under consideration related to natural language processing. He was involved as an investigator in the MIT sponsored project to develop algorithms for spam call fake in a telephonic conversation, system development for speaker identification. He has also established an additive manufacturing and 3D printing labs in NIT Patna Beta campus in collaboration with CDEC Kolkata, funded by MIT. Dr. Singh has been recognized as world ranking of the top 2% scientists in area of artificial intelligence. The year 2021, 2022, 2023, 2024, according to survey given by Stanford University, USA. He was awarded S4DS Data Scientist Academia Award by the Society for Data Science in 2020.
He is an associate editor of the International Journal of Electronics Government Research by IGI Global and Network Communication in Neural Systems. And Taylor Francis. Welcome to you, sir. Handed over to you, sir. Please. Thank you. So, good morning to all of you, and thank you for this. Hello, am I audible? Good morning to all of you. Now, so should we start? Yes, yes, sir. Okay. So I hope that you have already gone through AI means normal. What is AI? Neural network, machine learning, generative AI. Also, as I came to last day, you have been discussed. So it's basically about that only, and I would also like to show you how exactly we can implement things, right? So the title which I have given is From Fields to LLM, Transforming Agronomy with Generative AI. Now, generative AI is what is the talk of basically the era right now. We have GPT, Gemini, Perplexity, and to name a lot, such systems are available where we can directly put our question, and they are creating, in fact, a lot of troubles also. If they are facilitating our life, a lot of job cuts, etc., are expected. You understand that. So how we can use that generative AI models for our agriculture purpose or any other similar applications. So, why talk about the AI in agriculture right now, or in fact for last couple of years? In fact, we were now every university is also forced to have digital agriculture. In fact, we had a proposal already to start digital agriculture in our institute from this year, but we delayed it because of the some resources. But digital agriculture now. So agriculture is not only now related to or confined to basically the soils and the farmers, traditional farming practices, where farmer means typically if you imagine a farmer means कि एक आदमी होगा जो कीचड़ से हुआ हो. So it's not the scenario right now, right? So a lot of things have changed. Obviously, the farm will be, even the farm structure have changed. So why we need generative AI or in fact AI in agronomy? So we have rising production pressure. Now you think of the population is growing every day, and now since the population is growing every day, we need to have, but the land is not growing. The agriculture land is in fact shrinking. So if you think of, you know better than me, you are if most of you, a lot of you are from agriculture university, so you know the lands are decreasing, whereas the population is increasing, and so we have to, with a smaller land now, we need to create more say crops and more aids basically. So rising production pressure. So feeding this growing population is no doubt a big issue. And now we, in fact, earlier the farming practices were only inherited from one generation to another generation in just spoken words. कि इस फसल के लिए ऐसे इस समय पानी देते हैं, इतना दवा देते हैं, and so and so. So parent used to teach their children, and it was never documented or there was no as such handbook. But now we have data, so we are basically living in a data-rich world. And in this data-rich world, if we can find out proper data, exactly what was done and how it affected the total crop, then probably we can make a better system, a better prediction model, better guiding system which can guide how we should proceed to this agriculture part. So that's what we are saying, that data-rich agriculture. Data-rich agriculture means we now have data about soil test, we now have data about the weather conditions, sensors, satellite imagery,
where you are getting the real field data. Even what happened in the past, means last year when I used this sort of scenario, what was the yield? And if I change the scenario, even we can do a simulation. If I change the scenario, how this can change. So based on that, we can obviously change the total nature of the agriculture. Precision and efficiency. It helps our optimize irrigation. Now, irrigation has been a issue in our country for a long time. Somewhere it is drought, somewhere it is flooded. So everywhere, every year, that's really a normal, especially if you think of Bihar. There are some regions where every year there is a flood, and there are some portions where every year there is a basically drought. So people are not getting the water for their lands, agriculture lands. So how we can precisely locate or find out the pinpoint the location or the way of techniques of irrigations, then fertilization, pest control. Now we know that uh, extra fertilization or pest control may aid or may increase the crop, but it may affect in a negative way to the people who are consuming it. So again, data can help how it was affected. So precision. So now we have even precision agricultures also. We have several terms nowadays. These are popular terms are there. We can have better decisions for farmer, and obviously as a AI means agricultural student, knowing these AI tools can help you better optimize or better plan for or better can create better models or suggestions for the farmers. Right. So that's the idea. Exactly how the agricultural, because as sir told me that a lot of students are from agriculture university. So how agricultural university students can take advantage of these AI models, and then they can plan or integrate that in their course. So if you see the uh, field experiments, now we have remote sensing data, we have farm management software, mobile advisory apps. Now every year, if you see in our institutes, or in fact in several private institutes, and this what do we call it as hackathon nowadays. Have you participated in any hackathon? Any one of you? Everyone. So hackathon, they give a lot of such, and most of them are connected with agriculture. So students are coming up with their ideas. So we have a lot of mobile advisory tools, starting from disease detection to say marketing to storage and so many things. So we have lot of those say mobile advisory apps, farm management software, remote sensing data, weather data. So how we can use those data for agriculture or betterment of the agriculture. New data streams, like we have even drone technology have been very means for last few years. In fact, in last 5 to 10 years, 5 years now, people are working on the drones. How we can create drones, or how drones can be used to look after the fields. So field here doesn't mean a field of just one, say, 5 cut, 10 cut, and so on. Exactly, that's where we lag. Here in India, normally the land per person is very small. If you go to western part, one person's land will be too big. So manually, in fact, going from one end to the other end is really difficult. So their drone is the only means option. So how drone? But drone has different problems also. If you take a drone and if you just hover it over the field, so if it is at a far distance, then the image cannot be good enough. But if you take it down, probably with the air, what it say creates, the fields will be disturbed, and again the image will not be good. So that's really a big issue in research for last couple of years. People are working that key. Okay, at a distance, how we can take image and not affect the crop. So that drone technology, so they are now coming, or they are now basically being used
or a lot of resource. Satellites continuously generating spatial and temporal data about the crops and resources. We have a lot of decision support systems. Decision support system means if we have some systems which can take the real-time data, and based on those real-time data, it can predict or it can suggest you. If this is say, ultimately the decision has to be taken by human being only, right? The machines can't take decisions. If you rely on machines' decision, they can recommend you, they can suggest you that this can be a better way, but ultimately it is you who will decide. So that's why they are only decision support system. They are never the decision making system, right? We have connected stakeholders like farmer, extension workers, researchers, policy makers here. In fact, one of my PhD scholars working in this field, you will be surprised to know, Government of India has taken a lot of steps. They are continuously doing it. We started with a very basic, simple problem. What we did is we just started browsing all the pages. You might have seen a lot of web pages created by Government of India, like M Kisan portal, Kisan Yojana, these and so on. There are so many websites created by Government of India. Then we just analyze what is the footfall on those websites. How many people really look into that? Surprisingly, it was really very low, 3%, 5%, 10% compared to popular apps. Meaning what? If people are not really even browsing those pages. So the pages had been created for the farmers only, or to the people who are surrounded or who are close to those. But if people are not browsing those pages, not visiting those websites, the real advantage what the government is intending is never reaching to the people. So we got a lot of say issues, why people are, then we did a lot of questionnaires also to people, why people are not visiting those pages. A lot of issues came, and one of my scholars is working on that, how we can resolve those issues, how these pages can be made more popular. And nowadays, with the advent of this AI and LLM especially, can we just move on from simple websites to LLM based things, right? LLM everyone knows now, large language models. What like GPT is above, made it very popular. So if we can use those services, so then we can probably reach to the farmers in a much closer way or much better way. We can connect with them. So that's what we want. Okay, considering the current generation of technical solutions or technology what we have in terms of AI, machine learning, deep learning, to this LLMs, how we can utilize these techniques one by one or in sync to these agriculture problems. So we will talk about exploiting data sources. Now, if you look into the data, up to 2015, whatever data was created in the whole world, now we are creating that amount of data almost every minute, right? So the volume has increased drastically, such that every second, every minute, you are creating a huge amount of data and manipulating. So we just like, if you take another example, like student, when we were student, to find out a single page of resource, like अगर कोई टीचर नोट्स दिया, अगर उसका फोटोकॉपी नहीं कराए या नहीं लिख पाए, तो there was no other way. उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था. Now today, if you see a lot of resources, if you just Google it, a lot of web pages will come, lot of PDF will come, lot of even video lectures will come through YouTube and several other video platforms. So you see the shift from zero information to information overload. So it's an era of information overload. When we were student, we were having zero information, so we were devoid of information. We were having very limited कि हमको लाइब्रेरी ही जाना है, लाइब्रेरी से ही किताब ढूंढना है, नोट्स ढूंढना है, कोई एक पेज में आंसर मिल गया तो मिल गया. But nowadays, if you ask the same question, you will get in fact enough number of answers.
Some of them may be true and some of them may be false. Again, the scenario has reached to that same level. पहले भी हम लोगों को एटलीस्ट वो किताब ढूंढना होता था और कंफर्म थे कि वो सही है, बट अभी प्रॉब्लम अलग हो गया है कि इतने सारे आंसर्स है, इसमें से सही कौन सा है. द नेचर हैज चेंज्ड, बट द लेबर जो हम लोग देते थे वही आज भी जरूरत है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे आंसर्स गलत होते हैं. राइट. सो what you are getting, so exploding data sources, so data sources has exploded. अभी आप रोड पे जा रहे हो, you are tracked by several camera, all those data is being stored somewhere, no? In China you will be surprised to know कि आप रोड पे चल रहे हो, that your movement on the road decides कि आपको किस तरह के गवर्नमेंट बेनिफिट मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे या नहीं. Right. So they are creating a citizen scoring system. They call it as citizen scoring system. So while you are moving on the road, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं. So how you are commuting on the road, what you are doing, whether you are breaking any rules, regulation, etc. That is basically going to create a score for you. So all those cameras are used to score. How ethical it is, I am not going into that discussion. But China is utilizing this. Right. So this is what data exploding means. So what I'm saying, that exploding data sources. So we have really exploding data sources. Unimaginably, means data has increased many-fold for last couple of years, especially. Raw data versus usable insight. Like as I told, like camera is everywhere. You know, हमारे यहाँ या नॉर्मली कैमरा का क्या यूज होता है, ठीक है चल रहा है. अगर कोई इंसिडेंट हुआ, इस कैंपस में भी बहुत सारे कैमरे होंगे. सो नॉर्मली फॉर व्हाट पर्पस दे आर यूज्ड, कि इफ देयर इज एनी इंसिडेंट रिपोर्टेड, देन वी विल चेक उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कि कुछ अनवांटेड या कुछ ऐसा हुआ है, अनयूजुअल हुआ है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट मैन्युअली एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड. सो दैट्स बेसिकली अ रॉ डेटा. Camera ka storing video, that's a raw data. But as I told, the China is now creating a score out of that. Again, I'm repeating, ethical है नहीं है वो अलग issue है, लेकिन कर रहा है. So meaning what? That raw data somehow they are converting into some meaningful insight. How good or bad that is, that's a separate issue, but they are doing it. So how to convert this raw data to basically meaningful or create meaningful insight from that? That's the issue. So normally for the computer scientist or AI ML engineer nowadays, a lot of AI ML related courses are there. So all these AI ML related engineers are expected to convert this raw data or make models or make scenarios so that this raw data can be converted to usable data or some meaningful or decision oriented data. Analytics and models. So this analytics or modeling is not new. It's more than 200-year old. हम जो भी आज करते हैं ऐसा नहीं है कि हम लोग लास्ट 5-7 सालों में ये डेवलप हुआ है. This is more than 200 years old. Earlier these things were done by the statisticians. पहले statistics के जो लोग होते थे, statisticians used to create models. But there was limitation because it was dependent on total mathematics and calculations, so it was slow. It can't handle a huge amount of data. It was having a limit in that sense. When this computer's capability have increased and people have developed new models through computational techniques, then that the capability has increased to include more and more data. And as we add more and more data, obviously the model is expected to behave better. देखिए मशीन लर्निंग सब लोग जानते हैं. मशीन लर्निंग अगर सोचना है कि मशीन लर्निंग एग्जैक्टली है क्या, तो अपने आप को या खुद को नहीं इमेजिन कर सकते हो, आप काफी बड़े हो गए हो, तो अपने आसपास में किसी 3-4 साल के बच्चे को ढूंढो. ठीक है, घर के आसपास कहीं भी मोहल्ले में कोई अपना ही रिलेटिव हो, तो फाइंड आउट अ किड व्हिच हु इज नाउ रियली अराउंड 3-4 इयर्स ओल्ड, जो बोलता हो थोड़ा बहुत, लेकिन लिखना पढ़ना भी नहीं जानता हो.
उससे बात करो, you will find out कि they do not know the grammar, they do not know what ABCD is also, but they can do or they can communicate with you in proper language में जैसे communicate करना चाहिए, जो भी इनका native language होगा, हिंदी, English. I do not know whether you have ever thought of this or not, but now you take my words and try to analyze the scenario. कि उस लड़के को ABCD लिखने भी नहीं आता है, क ख लिखने भी नहीं आता है, लेकिन वो हिंदी बोल सकता है अगर वो इस बेल्ट का है तो। इंग्लिश में भी कुछ चीजें वो बोल लेता है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इस तरह का वो बोल लेगा। उससे आप बात करोगे तो वो मोस्टली ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस बोलेगा, कुछ गलत हो सकते हैं, बट quite a good number of sentences will be correct. Now that's what machine learning is. If you imagine that kid to be a machine, so that machine has learned. कैसे सीखा वो? उसको ग्रामर पढ़ाया नहीं गया, उसको ABCD पढ़ाया नहीं गया, फिर भी वो सीख लिया। उसको आप बोलिएगा लिख दो ABCD क्या है, तो नहीं लिख पाएगा, लेकिन आप बोलिए कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, तो इतने का साथ वो जवाब देता है ना। कैसे देता है? That's what machine learning is. How that particular kid has learned? From data. From data he has learned. So from surrounding he is listening. मम्मी पापा बात कर रहे हैं, आसपास में बच्चे बात कर रहे हैं, लोगों को देख रहा है, how what they are doing, and then the mother, father, parents, बड़े भाई बहन जो भी है, they are guiding कि नहीं ये ऐसे नहीं बोलते बेटा, this is right, this is wrong, this is what you should say when you are meeting with first time to a people, बोलते हैं ना। So with that supervision or that sort of simple input, that data, the kid has learned. So that's what we also want, or we are doing in fact. हम मशीन को ग्रामर नहीं सिखाएंगे, हमको ग्रामर नहीं सिखाना है। Earlier people used to teach grammars for natural language processing. अभी आप LLM देखते हो, मोस्ट कभी भी वो गलत सेंटेंस तो कभी नहीं लिखता है। अब लोग उल्टा बोलते हैं, पता है। पहले लोग पेपर चेक करते थे किसी का, तो लोग बोलते थे कि उसमें गलती नहीं होना चाहिए। अभी लोग बोलते हैं यार गलती दिख जाए तो मान लेंगे कि वो ह्यूमन रिटेन है, गलती नहीं है इसका मतलब वो LLM से जनरेट किए हुए हैं, right? The things have changed in such a way. So that means now we accept, that's 100% true, कि LLM के किसी भी सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगा, टाइपोज नहीं होंगे, जो कि नॉर्मल ह्यूमन अगर लिखेगा तो होंगे ना। तो वो इतना परफेक्ट हो चुका है बिना कोई ग्रामर सीखे हुए, उसको कोई ग्रामर नहीं पढ़ाया गया है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि किसी भी LLM को कोई ग्रामर नहीं सिखाया गया है, जबकि LLM आने के पहले जो भी मॉडल बनाते थे उसमें प्रॉपर्ली ग्रामर सिखाते थे हम लोग। वी हैड अ सब्जेक्ट कि हम नेचुरल लैंग्वेज के ग्रामर बना के, और पहले नेचुरल लैंग्वेज बेस्ड जो भी सिस्टम होते थे, वी यूज्ड टू टीच देम, बट नाउ टू LLM वी आर नॉट टीचिंग देम। सो LLM हैज लर्नड एवरीथिंग बाय जस्ट ओवरहियरिंग। वो सोसाइटी से जो उसको सुनने में आ रहा है, इसी से सीख रहा है। So that's the power of data. So how we can create those sort of models, simulation models, we can create crop simulations, AI algorithms, and then we can say in fact predict the yield, forecast कि कितना yield हो सकता है, किस तरह के diseases हो सकते हैं। It's a very common problem, like a lot of students in our universities also does कि मोबाइल ऐप है, आप फोटोग्राफ ले लीजिए। इनफैक्ट आज भी आप गूगल को ही जस्ट एक फोटोग्राफ लीजिए किसी भी पौधे का, एंड यू आस्क व्हाट इज दिस, देन गूगल विल एनालाइज इट एंड इमीडिएटली टेल यू दैट दिस लुक्स टू बी a healthy plant or unhealthy plant, and if it is unhealthy, these are the regions probably कि ऐसा है, इसमें पानी ज्यादा हो गया है, कम हो गया है, या इस तरह के पेस्ट इसको ये हो गए हैं। So probably even last में probably you can correct it, or you can restore the plant by doing these activities, right? So this sort of analytics it can do by just looking at a particular single image. And then the role of the large language model I told you. Now what is why generative AI? Already the talk is going about that only.
Generative AI, what is difference between, let me just, I think I have, now this I am skipping what is artificial intelligence. By the way, you know artificial intelligence, AI started in 1956, right? जब कंप्यूटर भी नहीं था, कंप्यूटर के पहले AI आया है, ऐसा नहीं है कि AI नया है. In 1953, McCarthy coined this term when computers, digital computers were also not in practice. Then AI, when that, I think 1973 or 74, the first communicative model called as Elijah was made, right? So Elijah used to communicate to a particular person, and then started this field. So earlier the fields were basically rule-based systems. पहले AI में क्या होता था, पहले और अभी में डिफरेंस क्या आया है? पहले एक्सपर्ट, सो ह्यूमन वेयर द मास्टर, ह्यूमन जो जानते थे, we used to call it as expert system. So ह्यूमन जो एक्सपर्ट्स हैं, they used to write rules. These are the rules, and you have to follow these rules. So machine we used to just encode those rules, and machine used to follow those rules, and based on those rules it used to decide or predict or forward something. Then came the era of around 2000. 2000 के era में आते आते क्या हुआ कि people had started gathering data. So they gathered, once they gathered the data, then they forget about those rules. जब हमको रूल नहीं, हम नहीं बनाएंगे रूल, ये डेटा देखो और इससे तुम खुद अपना रूल बनाओ. What is the difference? जो legacy AI है, जिसको AI बोलते हैं, there the people used to create rules. Around 2000 when this data driven system started, so given this data, you create rules out of this and then you do a prediction. What we call it as machine learning, right? But even for machine learning, we used to create features, क्योंकि machine पूरे data को directly consume नहीं कर सकता था. What that means? He consider an image. Say, if I give a photograph of this one to machine directly can't take this whole photograph and find features from this. So what people used to do? People used to gather photographs, extract certain features from these photographs or whatever data you have, and then give those features to machine learning models, and then the models used to create rules for that. That was machine learning era. And now we are in fact, now also we have moved ahead, but recent past, we were in the era of deep learning. So in deep learning, what happened? No, we will not create any feature. I will give you the image, you create the features, you in fact extract the features by itself, and then you make a prediction. I hope if I can clarify it. Machine learning जब हम बोलते हैं, in machine learning we are extracting the features from a given object or from given data. But in deep learning, we even do not extract features. We say that, okay, given this data, you take it, you extract the relevant features from this, and then you do the processing. Yes. No. In deep learning, the model itself extract the features also. जैसे मान लीजिए, for example, if I am going to say recognize face with a machine learning model, and if I am going to recognize a face with a deep learning model, what will be difference? So if I am going to recognize a face with machine learning model, then normally given the image of a face, we will extract certain points. Okay, there are certain descriptions, facial descriptions we call it as, and those facial descriptions are extracted by, and those informations were given by human. Ultimately, machine will extract that facial expressions, but the instructions were given by human. ये इस जगह से यहाँ से जैसे इसकी दूरी निकालते हैं, यहाँ से इसकी दूरी निकालते हैं, ऐसे कुछ मॉडल्स हैं. जैसे कि एक फेस में एक सेंटर पॉइंट हो गया, फिर वहां से अलग अलग दूरी निकालो, and based on that you try to match it. That's machine learning model.
सो वी कॉल इट एज फीचर्स कि क्या चेहरे से फीचर निकाले। दूसरे केस में, डीप लर्निंग के केस में हम क्या करेंगे, वी विल गिव द इमेज टू द सिस्टम, द सिस्टम विल गो थ्रू द होल इमेज, उसको जो अच्छा लगेगा वो फीचर निकालेगा एंड देन इट विल मैच इट। So human being is not doing anything. So human is not in the loop. Human को ये भी नहीं पता है कि मशीन ने क्या फीचर निकाला and how it compared. Even in machine learning there was at least some idea to humans कि भाई ये इस तरह का फीचर निकाला है, right? But in deep learning we are totally zero about that. And then if you ask to the machine, डीप लर्निंग मॉडल से अगर आप ये पूछ दोगे कि भाई ये बता दो कि आपने इसको कैसे कंपेयर किया, अनफॉर्चुनेटली डीप लर्निंग मॉडल्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू से एनीथिंग टू यू। दे विल ओनली से टू यू कि भाई ये मैच करता है या मैच नहीं करता। हमसे ये मत पूछना, तो एक सलमान खान का ऐड आता था ना कि दोबारा मत पूछना। तो इन डीप लर्निंग मॉडल्स यू कांट आस्क कि व्हाई इट हैज ऑकर्ड, सिर्फ पूछ सकते हैं कि ये है या नहीं है। इफ यू आस्क कि व्हाई इट ऑकर्ड, डीप लर्निंग मॉडल्स आर नेवर गोइंग टू आंसर। दैट्स द प्रॉब्लम विद, सो हर टेक्नोलॉजी का कुछ एडवांटेज है। When it was AI based model, the accuracy was very low because we do not had any data as such. We were rule based system. When we came to machine learning model, we improved the accuracy of the model and slightly we have knowledge कि क्यों ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। When we move to deep learning model, we have very good accuracy, but we have lost that कि ये कैसे काम कर रहा है, ये क्यों ये है या नहीं। आप जैसे एक मानते हैं कि you just the example I told कि if you take a plant image and if you ask कि whether it is a healthy image or a diseased image, basically there is some infection in that, so it will only say कि healthy versus not healthy. If you ask कि why, on what basis you are saying that this is healthy or not healthy, deep learning models doesn't have any answer for that, right? We call this problem as explainability problem, or we call deep learning models to be black box model. ये black box है, इसको कुछ नहीं आता है, इसके अंदर कुछ नहीं आता मतलब इसके अंदर में क्या है ये नहीं जानता है या नहीं बता सकता, right? Then so that's how the machine learning shifted from AI to ML to DL. There is other view also, and that view is called as discriminative models versus generative models. Do you have any idea about that? So what is the difference in discriminative models? So say if I give certain things, some points, like I told that I have taken an image of say a plant and I am asking the model whether it is healthy or infected. So I am trying to discriminate healthy versus unhealthy. So this is a discriminative model. How it used to do is, say you imagine that there are some healthy classes samples and there are some unhealthy classes samples, so it basically creates a line. Sometimes if it is more dimensional, then we call it as a plane. It can be curve also. Generative model, on the other hand, what it does, it generates a sample from one of the known classes. So say इसी प्रॉब्लम को देखिए, एक ही प्रॉब्लम को दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक इमेज, I want to know whether it is healthy versus unhealthy. So I took this point, like जैसे हम लोग नॉर्मल जियोमेट्री में करते हैं ना कि given a new point, ये लाइन के इस तरफ है या लाइन के उस तरफ है। जियोमेट्री में बेसिक क्लास 8 या 9, 7 या 8 में इस तरह के रहते हैं, होता है ना। Given a straight line equation and then given a point equation, a point value, and then we need to decide whether the point is on the left hand side or right hand side of that line. So we used to create a distance, और ये पॉजिटिव आया तो इस साइड होगा, नेगेटिव आया तो उस साइड होगा।
याद आया? सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. सो वी ऑलरेडी, सो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल क्या करता है कि ऐसा ही एक लाइन ड्रॉ कर दिया. अभी आपको एक नया लीफ प्लांट मान लीजिए मिला, तो आप उसका डिस्टेंस उस लाइन से निकाल रहे हैं सिंपली. If it is positive, it is in one class. If it is negative, it is in other class. Right? So that's discriminative. नाम से ही पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, सिर्फ डिफरेंशिएट कर रहा है. दूसरा काम कैसे कर सकते थे? अभी मान लीजिए कि given one sample image, now I know two classes. हमारे पास दो मशीन्स है मान लीजिए, राइट? ये एक मशीन है, ये एक मशीन है, फिक्सिशियस मशीन है ये दोनों. This machine can generate classes of healthy leaves, and this machine can generate classes of unhealthy leaves. Am I clear? Just try to understand. I have got a fictitious machine. हम मान लेते हैं कि एक मेरे पास एक मशीन है, इमेजिनरी मशीन है. ये मशीन जितने भी हेल्दी प्लांट सही लीव्स हैं उन सब का इमेज जनरेट करता है, और ये मशीन जितने भी अनहेल्दी प्लांट्स के इमेज हैं उसके इमेज जनरेट करता है. तो नाउ आप प्रॉब्लम को सोचिए कि कैसे सॉल्व करिएगा. आपने एक नया इमेज लिया, तो व्हाट यू विल ट्राई टू फाइंड आउट इज कि इससे जो इमेज जनरेट होता है उससे वो कितना दूर है, और इससे जो इमेज होता है या इससे जो इमेज जनरेट होगा उससे वो कितना सिमिलर है, और इससे जो इमेज जनरेट होगा उससे वो कितना सिमिलर है. जिससे वो ज्यादा सिमिलर होगा हम बोलेंगे उस क्लास का है वो. So we do not have a line now. So we had two distributions. So एक machine means basically as an engineering student you understand that we have a distribution function. दुनिया का हर चीज किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जनरेट होता है. पढ़ाया जाता है जब स्टैटिस्टिक्स, हम भी जब स्टूडेंट थे, जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे तो हम लोगों को भी लगता था यार क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ाए जा रहे हैं. नाउ वी अंडरस्टैंड, और इसीलिए आपको भी ये सलाह है कि समझिए कि व्हाट एवर इन लाइफ, व्हाट एवर यू आर सेइंग कि मशीन है, बेसिकली इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. सो देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड दैट इज जनरेटिंग सम पॉइंट्स इन दैट स्पेस. सो हर स्पेस को हम एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मॉडल कर सकते हैं. इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कैसा है, सब चीज को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मॉडल कर सकते हैं. तो उसी तरह से हेल्दी प्लांट को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मॉडल कर सकते हैं, अनहेल्दी प्लांट्स को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मॉडल कर सकते हैं. एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि विच डिस्ट्रीब्यूशन हैज जनरेटेड दिस इमेज. सो वी आर आस्किंग दैट क्वेश्चन नाउ कि गिवन दिस इमेज which of these two distribution might have generated this. So now the question is about generation. So that's why generative AI. Got it? The name itself says. In the first case, we are asking, given this point or given this data sample, where is the discriminant line? A discriminant line के किस तरफ है? So this is discriminative model. Second case, given this data point, which of these two distributions have generated this? So it's a generative model because we are asking that question of generation, right? So that's why we have discriminative generative models. So recently, generative models have been basically the talk of the town, the buzzword now recently. People are now concentrating more, in fact, on generative AI. Till we have the discriminative AI, तो हम लोग सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करते थे. जब जनरेटिव आई आ गया तो सबसे ज्यादा खतरा आर्ट्स वालों के लिए है, राइट? सीरियसली, बिकॉज देखिए आर्ट साइंस अपने आप में एक डिफरेंट टाइप का डिफिकल्टी है, लेकिन आर्ट्स के प्रॉब्लम को करना इट्स मोर डिफिकल्टी. क्रिएटिंग ए न्यू इमेज, जनरेटिंग ए न्यू डांस स्टेप, creating a new sort of painting, poetry, or novel is really, it's more difficult. And till we had the generative models, we were not able to
see or do anything in those domains. उनको कोई खतरा नहीं था. The day generative model have entered into the picture, now even they are in danger also, right? Because now computers can create images. आपने देखा होगा, आप जेमिनाई को बोलिए कि जेमिनाई में एक ऐसा सिनेरियो है, मुझे एक इमेज क्रिएट करके दो. It can create an image for you. अब बोलिए किस तरह का एक पेंटिंग हमको. You do not need to give this sample also. You just need to give a scenario. कि ऐसा एक सिनेरियो है, मान लीजिए कि मैं एक समुद्र के किनारे एक बीच पे हूँ, सनसेट हो रहा है और हम 4 दोस्त बैठ के वहां पे बीच पे कॉफी पी रहे हैं. आप हमको ऐसा एक इमेज जनरेट करके दो. It can easily generate that, right? You have, if those who have tried it, good. Those who have not tried it, please try it. ट्राई इसलिए करिए कि देखिए कि हाँ क्या कैपेबिलिटी है. अभी हम जिस एरा में हैं, मशीन्स के पास क्या कैपेबिलिटी है. इफ यू आस्क टू राइट अ पोएम, अ लिटरेचर, इनफैक्ट ऑल दिस स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं, दिस इज क्रेडिट टू जेमिनाई. जेमिनाई हैज क्रिएटेड ऑल दिस स्लाइड्स, राइट? सो यू कैन सी दिस हैज बीन क्रिएटेड इन लेटेक्स. इसमें सब कुछ है, देखिए. And now in my login Gemini understands me. इसलिए अगर मैं बोलता हूँ तो ऑटोमेटिक नाम, पता, ये सब वो खुद से अब लिख देता है. वो भी बताने की उसको जरूरत नहीं है. So now it can create. So अब आर्ट्स वाले लोगों के लिए भी खतरा है. It can create better pictures. It can create better scenarios. Although it's not it beating them or real intelligence या real creativity है. I'm not taking away. जोक है, मैं ये बोल रहा हूँ. बट जो नॉर्मल एवरेज क्लास के जो इमेजेस या पिक्चर्स बनाने हैं, दैट यू कैन क्रिएट इन. आपको अगर कुछ एक सिंपल बनवाना होता, आप पहले हो सकता है किसी दोस्त साथी को बोलते यार बना दो ना, बहुत जरूरत है, सबमिट करना है, प्रोजेक्ट है, ये है, वो है. नाउ यू कैन इंस्ट्रक्ट जेमिनाई. जेमिनाई आपके लिए बना देगा. विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स एट मोस्ट इट विल टेक एंड इट विल क्रिएट गुड इमेजेज. काफी अच्छे इमेजेज क्रिएट कर सकता है. आई डू नॉट नो मेरा इसमें है कि नहीं. मैं आपको दिखाऊं कि पेपर लिखने के लिए आई थिंक इसमें है. लेट मी जस्ट नो, इसमें नहीं है. प्रोसेस ग्राफ है शायद. नो, इसमें नहीं है. अदरवाइज मैंने मॉडल के लिए, अपने एक पेपर के लिए मैंने बोला था कि मुझे एक ये लिख दो, क्या कहते हैं, इमेज बना दो. ये सिनेरियो है. व्हाट एवर आई आस्क्ड, इट क्रिएटेड द होल इमेज फॉर मी. शायद मैं वैसा कभी नहीं बना पाता. ये भी है. उतने सारे पॉइंट्स, आई कुड हैव क्रिएटेड जस्ट अ सिंपल ब्लॉक डायग्राम, बट इट क्रिएटेड विद अ लॉट ऑफ डिटेल्स. दैट्स द सिनेरियो. So you have a lot of generative models now coming up. Generative models जैसे आप उससे टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं, ऑडियो जनरेट कर सकते हैं. आज के दिन में, and why I am saying this, a lot of people may say you कि नहीं उसको इस्तेमाल मत करिए, बंद कर दीजिए. कि आप you can't do or you can't exhibit a behavior of ostrich. ऑस्ट्रिच के ऊपर हमला होता है ना, तो क्या होता है, वो जाके बालू में अपना सर छुपा लेता है. सोचता है अब तो कोई नहीं दिख रहा है हमको, तो हमको भी कोई नहीं दिख रहा है. सो दैट्स नॉट द ट्रूथ. यू आर इन एन एरा वेयर दिस थिंग्स आर अवेलेबल. सो आइदर यू मास्टर इट, यू यूज टू लर्न हाउ टू लिव विद दैट, अदरवाइज यू विल बिकम बेसिकली आउटडेटेड. तो यूज करिए, रेस्पॉन्सिबली यूज करिए उनको ये समझिए कि हाँ इसको यूज कैसे करना है, कितना करना है, कितने हद तक इसके ऊपर डिपेंडेंट होना है. दैट इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड. यू कांट ओवर रिलाई ऑन दैट. तो मैं कल का एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो वन ऑफ माय PhDs, नॉट माइन, इन फैक्ट माय कलीग्स PhD स्कॉलर, ही केम अप विद अ रिजल्ट. अगर आपको थोड़ा भी मशीन लर्निंग का मतलब क्लासिफिकेशन का आइडिया होगा, तो ये 2 क्लास क्लासिफिकेशन. In class 0, the results were in the range of around 0.997,
and class 1 the results were 0.03. So it's highly imbalanced and it's not predicting class 1. So I told you कि have you ever seen this? नहीं सर कुछ समझ में नहीं आया. बोले just you copy this data, put it to Google AI and ask, tell me something about this. He just written that phrase, tell me something, and just pasted that result. Immediately Google came up कि देखिए ये क्लासिफिकेशन का रिजल्ट लग रहा है मुझे और इसमें ये दिखाया गया है और ये इसमें इश्यूज हैं. अगर आपको इसको ठीक करना है तो you need to do this things. Right. So that's the capability right now. So learning nowadays, if you want to learn, whether you are a coder, whether you have a background in computer science or not, it doesn't matter. If you ask the system to write a code for me, it will write code for you also. But the problem is कि if you do not know exactly कि इस code में क्या है, then you can't change it or you can't debug it, you can't understand whether it is right or wrong. तो आपको बस इतना ही समझना है. कोड आप उससे लिखवाइए, लेकिन आपको कोड का बेसिक पता होना चाहिए कि उस कोड में एग्जैक्टली क्या क्या जाना है. देखिए डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर थोड़ी वो दवा बनाता है. दवा तो कोई और बना के आता है और आप बहुत बार जाइएगा तो डॉक्टर से ज्यादा अच्छा आपको एक फार्मेसी वाला ही बता देगा. वो उसका सारा कंपोजिशन बता देगा आपको. तो लेकिन डॉक्टर को रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर वो चीज देख सकता है जो वो फार्मासिस्ट नहीं देख सकता है. तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ डॉक्टर कि आपको आना चाहिए. लेकिन आप कोड लिखने के लिए आपको मैं नहीं बोलूंगा, इनफैक्ट अब कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि आप कोड लिखिए, बट आपको कोड का बेसिक समझ आना चाहिए. राइट. सो टाइप ऑफ जनरेटिव मॉडल्स, लाइक these are different variants of generative models. Mostly हम लोग जो देखते हैं वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स देखते हैं. जो पॉपुलर्स हैं आज के दिन में, ऑल those are ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल. 2017 का एक रिसर्च पेपर जिसने दुनिया बदल दिया, by Baswani, just one research paper by Baswani who introduced transformer and it changed the world. Right. कब तक है ये सेशन? 11:30. क्या सेशन था, कैसे कैसे? इसमें डेमो दिखा सकते हैं कुछ? सिस्टम कनेक्ट करना होगा ना. ये है 9:30 to 11:30. Okay. Then there is a tea break and then there is a demo session. Okay. So let's continue. So transformer based model, इसमें ये कर सकते हैं. इसमें ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल एक्चुअली क्या है? नॉर्मली जो हम आज के दिन में जो LLMs एक्सेट्रा व्हाटएवर वी सी, तो न्यूरल नेटवर्क बेसिक समझते हैं. एवरीवन हैज एन आइडिया अबाउट व्हाट अ न्यूरल नेटवर्क इज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि न्यूरल नेटवर्क क्या है, कैसे काम करता है. सिंपल, एक सिंपल न्यूरॉन कैसे काम करता है, उसमें हम बेसिकली करते क्या है. बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग इज ऑफ न्यूरल नेटवर्क ओनली. क्या राइटिंग का कुछ नहीं है इसमें? इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है इसमें राइटिंग का. अच्छा, विंडोज है ना, तो पेन तो होगा. ठीक है, हो जाएगा. नहीं वो पेन से हो जाएगा. दैट्स ओके. आई थिंक द स्क्रीन इज विजिबल टू दोज हु आर कनेक्टेड आउटसाइड. सो सिंपली एक न्यूरॉन जो हम बनाते हैं,
ये स्ट्रक्चर सबको पता है? This we call it as x, this is w, this is y, basically y hat, and here we have a bias d. So this is a simple neuron, right? And we write y hat equals to क्या होगा बताइए? wx plus b, एंड इन सबके ऊपर एक फंक्शन होगा, क्योंकि अप टू दिस पार्ट वी विल हैव summation of xw means xw plus b, and then we'll apply a transition function f. So y hat will be function of x wx plus b. ये एक सिंपल चीज है. अब मैं आपको एक दूसरा चीज दिखा रहा हूँ. देखिए एक्स वाई, मान लीजिए मेरे पास इस तरह का डेटा है. ये 1 है, ये 3 है. ये मैंने डेटा कलेक्ट किया है बाहर से, कहीं से. 3 है, 7 है, 4 है, 9 है. सो हम करते क्या है डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में, ठीक है. ये मान लीजिए कि ये पिछले साल का मेरा ये था फर्टिलाइजर काउंट था इन केजी, कि कितना केजी फर्टिलाइजर दिए, एंड से दिस इज द क्रॉप एल्ड, कि कितना हमारा फसल हुआ. सो हम क्या चाहते हैं कि हम ये एक फंक्शन निकालना चाहते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मैथमेटिकली. अगर हमको एक बार पता चल जाए कि y इक्वल्स, ये पता है हमको कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. नाउ अगर ये we know that y needs to be written in terms of function of x. Now the question is कि what this function should be. पहला क्वेश्चन. ये तो आपको डेटा देख के यू आर फाइंडिंग आउट कि ये रियल फंक्शन 2x plus 1 है, बट ये कंप्यूटर के लिए सोचिए. एंड इफ दिस डेटा इज इन थाउजेंड्स, बेसिकली इन मिलियंस, मिलियंस इस तरह का डेटा होगा, और वो इतना नीट एंड क्लीन तो होगा नहीं एग्जैक्टली एक बार में देख के ये फंक्शन आपको समझ में आ जाए या मशीन को समझ में आ जाए. तो व्हाट मशीन इज गोइंग टू डू इज, मशीन इज फर्स्ट गोइंग टू अप्रोक्सीमेट कि ये फंक्शन क्या होगा. अगर ये फंक्शन उसको पता भी चल जाए तो फिर मशीन क्या लिखेगा, इसको मशीन इसको तोड़ के ऐसे ही लिखेगा. अगर इसको मान लिया मशीन डिसाइड कर लिया कि कुछ लीनियर टाइप का फंक्शन लिखूंगा मैं, लीनियर वेरिएबल है, तो ये ऐसे ही लिखेगा इसको. देखिए ax प्लस बी, और ये ठीक वैसा ही है जैसा मैंने यहाँ लिखा है न्यूरल नेटवर्क में. अगर ये फंक्शन लीनियर होता तो ये एक सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है. और जो अभी बता रहे थे डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स में कि ये एक लाइन ड्रॉ करेगा, दिस फंक्शन विल ड्रॉ अ लाइन. अगर ये लीनियर है तो दिस विल ड्रॉ अ लाइन, एंड देन वी नीड टू डिस्क्रिमिनेट कि इस तरफ है या इस तरफ है. ठीक है. सो वी आर, अभी हम मशीन लर्निंग में करते क्या है, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस फंक्शन, एंड देन वंस दिस फंक्शन इज डिटरमाइंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस वेट a and b. These are the parameters. So you might have seen, जब भी आप कोई LLM ड्रॉ करेंगे, डिजाइन इसे डाउनलोड करेंगे या काम करने जाएंगे, तो you will find out कि there are a lot of parameters they are talking about. Like parameters की वो बात करते हैं. Parameter is nothing but this numbers, कि कितने उसमें इस तरह के constants हैं, a b c d, ये पैरामीटर्स हैं. जैसे यहाँ 2 पैरामीटर है. अगर ये मान लो कि यहाँ पे ऐसा होता है x1 x2, मान लीजिए ये इस तरह से है कि x1 1 है और x2 1 है तो ये वैल्यू 3 है, x1 2 है और x2 3 है तो ये वैल्यू 5 है, x1 3 है और x2 अगर 4 है तो ये 7 है. नाउ यू कैन फाइंड आउट अ सिंपल रिलेशन लाइक दिस. So then this would have been a1 x1 plus a2 x2 plus b, and you need to find out the value of, once you will have the value of a1 a2 and b, you put those values और फिर x1 x2 का कोई भी वैल्यू रखेंगे हमको मिल जाएगा y का वैल्यू.
तो हमको इसका वैल्यू निकालना होता है, A1 का, A2 का और B का. So that what I told just now कि statisticians we are doing it for a long time. मैथ्स में आपने क्रैमर रूल्स वगैरह पढ़ा होगा ना, याद आ रहा है कुछ? तो what we can do, we can create a matrix and then we can solve it for x1 x2. कुछ डेटा ले लेंगे और x1 x2 के लिए सॉल्व करेंगे, राइट? बट दैट विल ओनली कंसिडर अ हैंडफुल ऑफ डेटा. हमारे पास करोड़ों डेटा है, तो करोड़ों डेटा लेके इसको स्टैटिस्टिशियंस के वे से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम है. It will be a huge number of equations and solving that will be a tedious job. Yes. हम लोग इसको थोड़ा अलग वे में सोचते हैं. Have anyone of you played any knob based radio TV कभी ऑपरेट करने का मौका मिला है किसी को? जिसमें नॉब होता था. तो अगर किसी ने वो नॉब बेस्ड रेडियो टीवी अगर कभी ये किए है ना, तो दिस सिनेरियो इज वेरी सिमिलर टू दैट. इमेजिन कि आप 92.7 ट्यून करना चाहते हैं, राइट? नॉब है आपके पास, डिजिटल वाला नहीं, नॉब है, और आप 92.7 ट्यून करना चाहते हैं. तो क्या करेंगे? आप नॉब घुमाना शुरू करेंगे. इनिशियली देयर विल बी अ ह्यूज नॉइज, काफी नॉइज आएगा. आप नॉब घुमाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे आप 92.7 के आसपास जाएंगे नॉइज कम होता जाएगा और गाना अच्छा होता शुरू होगा. बट यू विल नेवर स्टॉप एट 92.7, यू विल ऑलवेज क्रॉस दैट. अगर किसी ने किया है, अगर एक्सपीरियंस है, तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड कि विल नेवर स्टॉप एट दैट पॉइंट, बिकॉज यू नेवर नो कि ये 92.7 पे पहुंच गए. यू विल ऑलवेज क्रॉस दैट. फिर जब क्रॉस कर जाएंगे तो फिर नॉइज बढ़ जाएगा, तो फिर लगता है क्रॉस कर गए. then you will again go back slightly, and so in fact you will two 3 times 4 times आप थोड़ा थोड़ा करते finally you will stop at some place and you still never know whether it is 92.7 or something else. वो really वहीं गया. So this scenario is very similar to that. कैसे है ये सिमिलर और क्यों मैं वो एनालॉजी बता रहा हूं आपको? अभी आप सोचिए कि यहाँ मैं पहले वाला एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिए मैं इतना ही छोड़ देता हूं ताकि मैं समझा पाऊं आपको. मान लीजिए ये सिनेरियो है एंड एज यू टोल्ड कि ये ए का वैल्यू 2 होगा और बी का वैल्यू 1 होगा, राइट? सो ये है, मान लीजिए कि ये 92 और ये 0.7 सर्च कर रहे हैं. अभी बताया ना, एफएम में सर्च कर रहे हैं. ये वैसा ही सिनेरियो है. तो हम क्या करेंगे? रैंडमली मेरा वो नॉब तो कहीं भी रह सकता था. हम बोलते हैं कि भाई ए और बी का रैंडमली कोई वैल्यू ले लो. से आई टुक रैंडम वैल्यू ऑफ 1 and 0.5. ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 0.5. रैंडमली आई हैव सिलेक्टेड. इफ आई अप्लाई दिस, तो क्या आएगा? वाई हैट क्या आएगा बताइए? ये होगा 1.5, ये 2.5, ये 3.5 और ये 4.5. ये आएगा वैल्यू. और इन दोनों के बीच काफी डिफरेंस है. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एरर. जो एफएम के केस में नॉइज आता था, यहाँ एरर है, राइट? अब हमको क्या करना है? इस एरर को रिड्यूस करना है. जैसे एफएम पे भी तो ही कर रहे थे ना, नॉइज को रिड्यूस कर रहे थे. हम 92.7 कभी नहीं जा रहे थे. बेसिकली अगर प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से सोचिए तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस द नॉइज. यही ना करते हैं नॉब बेस्ड सिस्टम में, यू आर जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस दैट नॉइज. सो हम भी इस एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. अब इस एरर को रिड्यूस करने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग? एक ग्रेडियंट निकालते हैं और ग्रेडियंट से लो जाते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे सिंपल लेते हैं कि ये एरर था इतना, तो ये एरर को समहाउ अब क्या किया, हम इसको बढ़ा दिए, इसको नहीं चेंज किया मान लीजिए, या इसको 1.5 कर दिए बढ़ा के और इसको हम 1 कर दिए. नाउ सी कि अब क्या आएगा? वाई हैट. एक मिनट, इसको इरेज कर दे ताकि वी कैन राइट हियर अगेन.
हाँ, अब बताइए क्या आ रहा है? 2.5, 4, 5.5, 7। पहले से एरर काफी घटा ना। आप अगर इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे, मान लीजिए अब इसको 1.5 की जगह 2 कर देंगे और इसको 1 रहने देंगे, या इसको अगर 1 पॉइंट मान लीजिए 1 कर दिए, तो ये एरर क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंचेगा। अगर इसको प्लॉट करेंगे ना, ये ऐसे होगा, ये एरर ऐसे डिक्रीज करेगा और ये फिर इधर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। शुरू में ज्यादा एरर आता है, फिर ये डिक्रीज होते 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 होते, जैसे बताए कि रियल वैल्यू हमको नहीं पता है, इसलिए हमेशा नॉब दूसरी तरफ चला जाता है, फिर रिवर्ट करते हैं। तो हम यहाँ जब आएंगे ना, तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पहुंचने के बजाय हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, फिर लगेगा अरे एरर तो फिर बढ़ने लगा, तो फिर हम पीछे बैकवर्ड स्टेप लेंगे एंड स्लोली वी डू इट। और आप मैनुअली अगर आप सोचिए कि अगर रियली नॉब नहीं किए हैं, तो आप, आई कैन से यू दूसरा एग्जांपल, आपके जनरेशन का एग्जांपल, कभी डीजे वगैरह अगर जाओ तो देखो, वो भी बहुत सारा नॉब रखता है, तो उस डीजे वाले का नॉब देखो, एक दिन डांस वांस छोड़ के डीजे वाले का नॉब देखो, यू विल ट्राई टू रिलेट कि एग्जैक्टली होता क्या है। आप अगर रियली में नॉब को ट्यून करने जा रहे हैं, कोई भी ट्यून करने जाएंगे, तो शुरू में आप काफी तेजी से घुमाते हैं, और धीरे 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 जैसे नॉइज कम होने लगता है, योर स्पीड बिकम्स वेरी स्मॉल। तो यहाँ तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे उस चीज को? क्योंकि यहाँ से हम चाहेंगे कि इधर से जंप काफी ले, लेकिन यहाँ आए तो वो जंप बहुत छोटा हो जाए। तो वी पुट अ लर्निंग रेट। आप लोगों ने सुना होगा, लर्निंग रेट एक होता है, सुना है कभी? अरे वैसे भी हर स्टूडेंट का एक लर्निंग रेट वैसे ही होता है। पूरे सेमेस्टर में जब पढ़ाई होती है, तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम एक अच्छे स्टूडेंट की बात करें, रियल एक आइडियल स्टूडेंट, बहुत अच्छा स्टूडेंट, तो पूरे सेमेस्टर में वो जब पढ़ता है, तो क्या होगा कि हर एक पेज, हर एक चैप्टर, हर एक चीज को वो ध्यान से पढ़ेगा। प्रॉब्ली एक चैप्टर को पढ़ने में वो 5 दिन लगाएगा, और उसी स्टूडेंट को एग्जाम के जाने के दिन अगर पढ़ना हो, तो पूरा किताब पढ़ लेगा, एक बार पढ़ेगा। तो लर्निंग रेट आप सोचिए शुरू में उसका कितना ज्यादा था, वो स्लो जा रहा था, और बाद में आके उसका लर्निंग रेट कितना फास्ट हो गया। होता है ना, ये नॉर्मल चीज है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ट्यून करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये ओल्ड वेट, सॉरी न्यू वेट, वेट न्यू इक्वल्स टू वेट ओल्ड, पुराना वेट, प्लस वी एड अ लर्निंग रेट, से ईटा, कोई इसको अल्फा बोलता है, जो भी सिंबल यूज करिए, इनटू ग्रेडियंट ऑफ दिस एरर। तो हम इसको सिर्फ डेल्टा से लिख रहे हैं, इनटू एक्स आई। तो नया वेट क्या होगा? ये जो चेंज करके हम बोले कि पहले 1 लिए थे, फिर इसको 1.5 किए, वो कैसे चेंज हुआ एक्चुअली? तो हम लोग क्या करते हैं, नया वेट क्या होगा? ओल्ड वेट प्लस एक लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्यों? क्योंकि हम फास्ट जाएंगे या स्लो जाएंगे, और डेल्टा कितना एरर था, वहां पे एरर का ग्रेडियंट किस तरफ था, एंड देन द इनपुट इटसेल्फ। इस फार्मूला से हम वेट चेंज करते जाते हैं। ये एक नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। अब एक न्यूरॉन से देखिए कुछ नहीं होता है, तो हम लोग इस न्यूरॉन को हमारे सिस्टम में, हमारा, अगर आप रियली इफ यू आर ईगर टू नो, वी आर इन फैक्ट मोर देन 1000 टाइम्स स्लोअर देन अ कंप्यूटर्स प्रोसेसर। हमारा जो प्रोसेसिंग स्पीड है, वो एक नॉर्मल जो कंप्यूटर डेस्कटॉप जो मिलता है ना, इससे 1000 टाइम्स स्लो है हम लोग। लेकिन अभी तक तो कंप्यूटर से काफी अच्छा काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज वी हैव सो मेनी न्यूरॉन्स, in fact more than what a computer have, and we have more number of connections, so that's why we appear to be faster. तो हम लोग जो न्यूरॉन्स को हम लोग ऐसे रखते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स को हम लोग सजाते हैं ऐसे, मान लीजिए कि इस तरह से लेयर में सजाते हैं इनको।
सबका सबसे कनेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से सजाते हैं। These are called as input layer neuron. This is the output layer neuron, and these are called as hidden layer. And this is called as a feed forward neural network. Right? तो अभी हम लोग जो एक न्यूरॉन पे दिखाए, अब क्या होगा, यहाँ इनपुट देंगे, ये हर जगह वेट्स हैं, सब जगह वेट्स हैं, यहाँ आउटपुट आएगा। नाउ एरर तो सिर्फ यही पता चलेगा। मान लीजिए कि आप 15-20 दोस्त मिलके एक कार हायर किए, एक बस हायर किए, कहीं घूमने जा रहे हैं, बस ने रूल तोड़ा, पुलिस वाले ने एक ट्रैफिक फाइन लगाया, पैसा कौन देगा? जो सामने सीट पे बैठा है वही देगा, या जो पीछे बैठा है वो भी देगा? हाँ, जो सामने बैठा सिर्फ वही देगा? सब देंगे? देंगे ना। तो सिमिलरली देखिए, एरर तो सिर्फ यही पता चलेगा, इसको तो एरर दिखेगा नहीं, दिखेगा? आउटपुट तो सिर्फ यही आएगा भाई, एरर सिर्फ यही पता चलेगा। अब अगर एरर सिर्फ यहाँ पता चलेगा तो अब हम कैसे चेंज करेंगे वेट? क्योंकि वेट चेंज करने के लिए अभी बताया क्या कि नया वेट पुराना वेट प्लस ईटा इंटू डेल्टा इंटू एक्स आई। तो वहां डेल्टा कैसे कैलकुलेट होगा भाई, क्योंकि एरर तो यहाँ है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो एरर हुआ है वो इन सब वेट्स के कारण हुआ है, सारे लोग कल्प्रिट्स है उस वेट्स के। तो हम लोग सारे वेट्स की हिस्सेदारी निकालते हैं कि भाई तुम्हारा इतना रुपया फाइन लगेगा, और इक्वल भी नहीं लगेगा। तुम सामने के सीट पे बैठे हो तो ज्यादा फाइन दोगे, ये पीछे के सीट पे बैठा है तो कम फाइन देगा। तुम सामने वाला रोक सकते थे उसको, गाड़ी वाले को, राइट? सो वी कैलकुलेट द पार्ट परसेंटेज। सो यहाँ पे हम इसका एरर कंट्रीब्यूशन कितना है, फिर इसका एरर कंट्रीब्यूशन कैसा है, और लास्टली जब यहाँ तक आता है ना तो ये सारे मल्टीप्लाई होते होते जाते हैं, ये सारे डेटा, राइट? वी कॉल इट एज बैक प्रोपगेशन, ये पीछे जाता है ऐसे। एंड दिस बैक प्रोपगेशन इटसेल्फ हैज सो मेनी थिंग्स, इस पे तो पूरा सेमेस्टर का कोर्स चलता है। हाँ, व्हाई डू वी नीड हिडन? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। नाउ अगर आप एक ही लेयर में देंगे, देखिए एक न्यूरल नेटवर्क का एक थ्योरम है जो बोलता है कि अगर कोई हिडन लेयर ना दे, एरर बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। से देयर इज अ थ्योरम ऑफ न्यूरल नेटवर्क व्हिच सेज कि एक हिडन लेयर चाहिए। एक भी हिडन लेयर नहीं रखेंगे आप तो क्या होगा कि आपका वेट्स डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे इनपुट और आउटपुट के, तो आप फंक्शन को अच्छी तरह से अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, because there is a limitation। वेट्स डायरेक्टली आपके सबस्ट्रेट, आपका जो फंक्शन होगा वो सिर्फ ऐसे ही बनेगा। मान लीजिए कि आप ये आपका एक भी हिडन लेयर नहीं है, तो ये आपका इस तरह का इक्वेशन बनेगा, एक्स आई डब्ल्यू आई प्लस बी, यही इक्वेशन बनेगा ना, क्योंकि एक ही लेयर में सारे वेट्स और इनपुट मल्टीप्लाई होंगे और उसके साथ बायस मल्टीप्लाई होगा और एक ही बार एक्टिवेशन फंक्शन यूज होगा। तो दिस एक्टिवेशन विल नॉट बी सो गुड कि आपके किसी भी तरह का, मान लीजिए कि आप इसको एक कर्व बनाएंगे तो ये इस तरह का एक कर्व बना सकता है। अभी मेरा हमको इस तरह का एक सरफेस क्रिएट करना है, मान लीजिए, तो ये एक नॉन लीनियर एक्टिवेशन से अब इस तरह का सरफेस नहीं क्रिएट कर सकते। पहले तो ये सोचिए कि इस तरह का सरफेस क्रिएट कर सकते हैं। सरफेस का मतलब क्या हुआ, अभी डिस्क्रिमिनेंट हम लोग पढ़े ना। सो इसके अंदर का डेटा मान लीजिए इस तरह से है और बाहर का डेटा ऐसा है, और ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था। अब आते हैं हिडन लेयर पे, ठीक है, ये समझ में है। आप एक ही जगह अगर एक नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक मैक्सिमम एक कर्व बना सकता है, खुद सोच के देखिए, तो पूरे का सम कर लेगा और फिर एक बार आप नॉन लिनियरिटी लाएंगे,
आप साइनोसॉइडल भी लीजिए, कोई भी एक नॉन लिनियरिटी लीजिएगा, हर एक का अपना एक नेचर है, उसी हिसाब से वो एक नॉन लिनियरिटी लाएगा इसमें। बट इफ वी रियली वांट दिस सॉर्ट ऑफ कर्व, इस तरह का बाउंड्री चाहिए हमको, हमारा जमीन जो है वो ऐसा है, हमको ऐसा फेंसिंग चाहिए। अब अगर हम बहुत सारा हिडन लेयर रखते हैं इसमें, तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ के जो वेट्स होंगे उसके ऊपर ये फंक्शन यूज होगा, यहाँ के जो वेट्स होंगे और ये प्लस ये पूरा, उसके ऊपर ये यहाँ जो फंक्शन है वो यूज होगा। तो नॉन लिनियरिटी क्या हो रही है, लेयर वाइज नॉन लिनियरिटी यूज होते जा रहा है। क्लियर, समझा पा रहे हैं कि अब आपके नॉन लिनियरिटी भी फेजेज में एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ये वाला पार्ट, इतना छोटा पार्ट, ये वाला अंदर वाला क्रिएट कर रहा हो, तो जो स्मॉल एरियाज है ना, so you have more layers, so you will have more chances of creating this sort of more complex surface boundary. Accuracy will may increase, may decrease. I will come to that. देखिए, एक्यूरेसी तो हमारा टारगेट है कि ओवरऑल सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ाए। अभी ओवरऑल सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जैसे क्या प्रॉब्लम आता है कि कुछ लोग के, आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप बोलते होंगे ना, कुछ स्टूडेंट्स है वो बहुत पढ़ाकू स्टूडेंट है, किताब मैंने बुक वर्म जिसको बोलते हैं, रट्टा मारने वाला, वो पूरा रट लेता है। तो वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो जाए, बहुत हो सकता है बहुत अच्छा नंबर लाए, लेकिन प्लेसमेंट का या अदर जो कंपनीज के दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, शायद उसमें वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे भी स्टूडेंट। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। उस सिनेरियो को हम बोलते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटेड हो गया है, राइट? नहीं, सिचुएशन डिपेंड नहीं। आप जब एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, आप उस चीज को तो समझ गए, उस चीज को, वो चीज आपके अंदर क्या होता है, जो रट्टा मारने वाला भी बोले ना आप लोग, रट्टा मारने का मतलब क्या हो कि आपके दिमाग में वो सारे वेट्स में जो है आपका वो सारा कंटेंट स्टोर हो गया। तो अगर उस कंटेंट से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन करेगा, इमीडिएटली विल आंसर एंड 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर करेंगे, बिकॉज दोस थिंग्स आर स्टोर्ड देयर। बट इफ यू आस्क समथिंग एल्स, then it will not be able to give such a good answer. Whereas on the other hand, जो स्टूडेंट क्या होता है कि हर चीज समझने की कोशिश करते हैं, वो याद नहीं पूरा करते हैं, बेसिकली दे ट्राई टू क्रिएट बाय कॉन्सेप्ट कि हमको ये समझ में आया, अब हमको आंसर लिखना होगा तो हम खुद से लिखेंगे। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी उनको कभी 90+ नहीं आता है, वो बेचारे 70-80 में ही संतुष्ट रहते हैं। बट बाहर का अगर कोई एग्जाम आता है तो दे कैन परफॉर्म ऑन अ सिमिलर स्केल, वो उससे ज्यादा डेविएट भी नहीं करता है। उसको अगर 80% आ रहा है तो थ्रू आउट वो 80 बाहर में भी ला देगा। Whereas a person who has just remembered things, यूनिवर्सिटी में तो 90 लाया, बट बाहर जाने के बाद वो 60 भी लाने में स्ट्रगल कर सकता है। हो सकता है ना? प्रैक्टिकली सोचिए, फिर हम आते हैं न्यूरल नेटवर्क पे। होता है ऐसा? So that same scenario may occur to our neural network also. अभी आपका जो क्वेश्चन है कि एक लेयर से हम काम चला सकते थे एक से ज्यादा, जैसे जैसे आप लेयर बढ़ाएंगे ना, क्या होगा कि ये बाउंड्री को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करता जाएगा। जो मैंने अभी बताया कि शायद एक लेयर में ऐसा ही बाउंड्री करता, मैक्सिमम एक गोल कर देता, या एक अंडाकार कर देता, या मैक्सिमम ऐसे एक कर देता। लेकिन जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज भी बना सकता है, ऐसे ऐसे वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स बाउंड्रीज भी बना सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर समझ में आएगा। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, ऐसे डेटा है। अगर हम लीनियर बाउंड्री ले तो ऐसे जाएगा। आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि नहीं सर हम इसको और एक्यूरेट करना चाहते हैं, तो आपने एक नॉन लीनियर थोड़ा सोचा,
वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, आपका दोस्त बोला है नहीं हम दो या तीन लेयर से काम नहीं चलाएंगे, हम एक ही बार 10 लेयर यूज करेंगे, मेरे पास बहुत कंप्यूटिंग पावर है, वो ऐसे किया। सॉरी, let me choose a different color so that I can show you the difference. ठीक से यार, ये इसमें मर्ज करके कॉट का ये करके जा रहा है। हाँ ठीक है, आपके एक दोस्त ने ऐसा किया कि वो सारे पॉइंट को टच कर रहा है, तो इसका टेस्ट ट्रेनिंग जब कराएंगे तो उसका एक्यूरेसी तो 100% आ गया ना, वो सारे पॉइंट को टच करते गया। अब ये वाला फिगर थोड़ा ठीक नहीं हुआ, एक मिनट, ये ऐसे जाएगा आपके दोस्त का। रियल सही में तो यही है, दिस इज करेक्ट, ये ज्यादा ट्रू है। तो अब अगर एक नया सैंपल पॉइंट अगर आपको दिया जाए, नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गए, तो नया कॉम्पिटिटिव एग्जाम मोर और लेस इसी सब्जेक्ट का उस लेवल के अगर बच्चों का हो, तो नया एग्जाम या तो यहाँ पे पड़ेगा या यहाँ पे समवेयर पड़ेगा। देखिए ठीक है, क्योंकि उस लेवल के बच्चे का है तो क्वेश्चन पेपर मोर और लेस ये इसी से रेंज में आएगा। अब देखिए जिसने ये मॉडल फिट किया है वो भी थोड़ा एरर पे रहेगा, जो लीनियर है, बहुत कम पढ़ा है, अंडर फिटेड, राइट, एग्जाम टाइम में पढ़ और के पास कर गया है, तो अंडर फिटेड है, तो वो भी काफी एरर उसके लिए भी आएगा चांसेस। लेकिन जो बहुत ज्यादा पढ़ लिया है उसके लिए ज्यादा दिक्कत है। राइट, so this is under fitted model, this is over fitted model, this is a perfect fit, right? So over fitting is always an issue. मशीन लर्निंग में या न्यूरल नेटवर्क में ओवर फिटिंग क्या होता है कि आपने बहुत ज्यादा पैरामीटर्स इकट्ठा कर लिया। देखिए जितना ज्यादा पैरामीटर्स वेट इकट्ठा करेंगे, मॉडल्स ट्रेनिंग डेटा को उतना स्टोर करेगा। ठीक, ट्रेनिंग डेटा को स्टोर करेगा का मतलब क्या हुआ कि ट्रेनिंग डेटा से रिलेटेड, यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा तो फटाफट आंसर देगा, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे वो फेल करेगा, बहुत अच्छा नहीं करेगा। मतलब थोड़ा भी अननोन सिनेरियो क्रिएट कर दे तो इट विल नॉट बिहेव एज परफेक्टली एज इट वाज परफेक्टिंग विद। सो ये हो सकता था कि ट्रेनिंग डेटा के साथ, ट्रेन के साथ ये 95% एक्यूरेसी दे रहा था, टेस्टिंग में ये आके हो सकता है कि 70% एक्यूरेसी देने लगे। यानी यूनिवर्सिटी में तो 95% मार्क्स आ रहा था, लेकिन जब मार्केट में गए तो 70% स्कोर कर रहे हैं। तो वी कॉल दिस मॉडल टू बी ओवरफिटेड मॉडल। और इसको कैसे ठीक करेंगे? तो वही कुछ लेयर कम करेंगे। ऐसा अगर होने लगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ज्यादा लेयर क्रिएट कर दिया, ज्यादा वेट डाल दिया है इसमें। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क में हीट एंड ट्रायल ही होता है। आप शुरुआत करो, एक लेयर 2 लेयर से शुरू करिए, लेयर बढ़ाइए जब तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, लेकिन साथ में एक वैलिडेशन डेटा सेट भी रखिए, एक टेस्टिंग डेटा सेट जो अननोन हो, उस पे देखिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं आया। यानी कि ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ का रिजल्ट और वैलिडेशन डेटा सेट के साथ का रिजल्ट बहुत डिफर जब करने लगे, दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, देन वी पेनलाइज इट। तब हम लोग न्यूरल नेटवर्क को पेनलाइज करते हैं कि नहीं नहीं अब कॉम्प्लेक्स मत हो, अब छोटा हो। अब छोटा कैसे करेंगे? तो वी यूज अ ड्रॉप आउट, वी कॉल इट एज रेगुलराइजेशन पैरामीटर्स, रेगुलराइजेशन। तो न्यूरल नेटवर्क में हम लोग हाउ वी डू वी रेगुलराइज,
वी ड्रॉप सम ऑफ द वेट्स, वी कुछ कनेक्शंस को हम रैंडमली काट देते हैं, ठीक है, तुम लोग मत करो, राइट. So that's what we do in case of that neural network. So as I told कि हम लोग one by one we can put feed forward neural network. Now I will just briefly give you कि what transformer looks like or what is basically in a transformer. Very basically I will go give you. So normally हम क्या करते हैं कि कोई भी इनपुट हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, नॉर्मली ट्रांसफार्मर जो आया था शुरू में टेक्स्ट के लिए आया था, तो टेक्स्ट डेटा हम यहाँ पे देते हैं. ट्रांसफार्मर के पहले एक LSTM मॉडल काफी पॉपुलर था, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी वी कॉल इट एज, राइट. तो ट्रांसफार्मर जब आया उसने बोला नहीं, हम कोई रिकरेंस नहीं करेंगे, attention is what all at all what is needed and it should be feed forward only. एक ही डायरेक्शन में जाएंगे हम, कोई बैक प्रोपगेशन मतलब बैकवर्ड ये सॉरी कोई फीड फॉरवर्ड नेटवर्क नहीं क्रिएट करेंगे. So what they created is कि let us have a text and have an embedding of the text. टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करिए, फिर उसके बाद इसको इस पे अटेंशन मैकेनिज्म यूज करते हैं. अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, बहुत लोगों को आदत भी होता है इनफैक्ट कि जब वो पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं कुछ कुछ चीजें. आई डू नॉट नो वेदर आज के दिन में तो ऐसे किताब पढ़ने का हैबिट ही खत्म हो गया है, वो अलग सिनेरियो है, बट पहले के लोग जब पढ़ते थे तो हार्ड कॉपी बुक में पेंसिल से या पेन से मार्क करते थे कुछ वर्ड्स को. सो दैट्स वेयर बेसिकली दे वर पुटिंग देयर अटेंशन, राइट. जब भी आप पढ़ते हो, आप वैसे भी जब भी आप पढ़ते हो तो यू पुट सम एम्फेसिस ऑन सम ऑफ द वर्ड्स एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अटेंशन. और वो एम्फेसिस आप कैसे देते हो, क्यों देते हो, खुद से आपको आंसर मिलेगा. बाय लुकिंग एट द सराउंडिंग वर्ड्स एंड द टेक्स्ट. सराउंडिंग में क्या है, उसका आगे पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उस हिसाब से आप वर्ड्स को इंपॉर्टेंस देते हो कि ये है, ये इसके साथ जा रहा है, सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, इम्पोर्टेंट वर्ड. दैट्स हाउ यू मार्क, नो. सो सेम थिंग, marks are basically being marked automatically by a neural network, what is called as attention model, right. Although I can't means it's not, there is no time also, and technicalities enough to give you the complete details of attention, but here given this text we create some attention module here. Attention module will give you relative importance of each word corresponding relative to others. मतलब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वहां तक अगर 8 लोगों को ले ले, ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो देखेगा कि मेरे लिए इन 8 रेस्ट 7 में से या इंक्लूडिंग माई सेल्फ किसके साथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या किसके साथ में ज्यादा अच्छा पेयर में जा सकता हूं. सिमिलरली ही विल डू दैट सेम थिंग, ही विल डू द सेम थिंग, ही विल डू द सेम थिंग, ही विल डू द सेम थिंग. सारे लोग सारे का देखेंगे. अब आप सोचिए कि द कैट सैट ऑन रेड ब्राउन से रेड रग, अगर मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड है, तो पहला जो दी है वो कैट के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबली जाएगा. तो जब दी अपने आप को देखेगा इन बाकी रेस साथ के साथ ना, तो किसके साथ हम ज्यादा अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली द वेट्स बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री प्रीवियस डेटा इसको लगेगा कि कैट के साथ ही रहना मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा जो पोजीशन है और जो मेरे पास में है, कैट विल बी अ बेटर वर्ड. सिमिलरली व्हेन वी कम टू रग, द लास्ट पार्ट, रग विल सी कि नहीं रेड कलर का रग है, सो रेड विल बी समथिंग व्हिच विल बी एसोसिएटेड विद. मान लीजिए अगर होता कि द रेड कैट सेट ऑन अ रेड रग, या ब्लैक कैट से रेड कैट नहीं होती है मान लीजिए, तो ब्लैक कैट ले लेते हैं, द ब्लैक कैट सैट ऑन अ ब्लैक रग. तो पहला ब्लैक कैट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होगा और दूसरा ब्लैक रग के साथ. तो जो मैट्रिक्स बनाएंगे ना, लुक बेस्ड ऑन द हिस्ट्री, इट विल गिव मोर वेटेज टू दोज कॉरेस्पॉन्डिंग थिंग्स एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अटेंशन. सो आप ये सोचिए अटेंशन में कि हर एक वर्ड
अपने को इंक्लूड करते हुए बाकी वर्ड्स के लिए एक वैल्यू डिसाइड करता है कि कितना क्लोज है ये मेरे, और ये सबके लिए होता है, राइट। एंड दिस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ट्रेनिंग डेटा, कि ट्रेनिंग डेटा में वो चीज देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इमेजिन इट टू बी अ 3-4 ईयर ओल्ड किड, कोई ग्रामर नहीं आता है, एबीसीडी भी लिखना नहीं आता है, फिर भी वो सही बोलता है। तो यहाँ भी आपको अगर ये जरा भी संदेह हो रहा है कि सर कैसे कर लेता है जेमिनाई, वही चीज है। उसको अगर इनफ एग्जांपल किसी को भी आप दिखाइएगा, दे विल एबल टू लर्न दैट। कोई ग्रामर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, द डेटा इज सफिशिएंट फॉर दैट। जो वो बच्चा करता है, कोई भी बच्चा करता है, हम भी वही किए हैं, आप भी वही किए हैं, आने वाला जनरेशन भी वही करेगा, राइट। और अभी आने वाला जनरेशन और अच्छा करता है क्योंकि वो बचपन से यूट्यूब ही देखता है सिर्फ। और ये डार्विन के सिद्धांत के ही हिसाब से चल रहा है कि हमारा आने वाला जनरेशन हमसे तो अच्छा होगा ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेगा, राइट। सो दैट्स हाउ वी क्रिएट द अटेंशन मॉड्यूल्स। आफ्टर दैट वी क्रिएट सम लेयर्स ऑफ बेसिकली फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, जो अभी बता रहे थे, तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क 12 लेयर, इस तरह से 12-13 लेयर ऐसे क्रिएट करते हैं, एंड देन वी गिव एवरीथिंग टू अ डिकोडर पार्ट, जो ठीक ऐसा ही होता है। सो वी हैव 2 ब्लॉक्स, वन ब्लॉक इज कॉल्ड एज इनकोडर, द अदर ब्लॉक इज कॉल्ड एज डिकोडर। अभी आप जो जीपीटी देखते हैं वो सिर्फ डिकोडर होता है, मतलब उस पूरे को एक बार ट्रेन करते हैं, पूरे ब्लॉक को, इनकोडर डिकोडर को मिला के ट्रेन करते हैं, मिला के ट्रेन करने के बाद इनकोडर को हटा देते हैं और सिर्फ डिकोडर को छोड़ दिए, वो आपका जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, जेमिनाई हो गया, सिर्फ डिकोडर है, उसमें इनकोडर नहीं है, राइट। कुछ ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें डिकोडर को हटा देते हैं, सिर्फ इनकोडर को छोड़ देते हैं। जैसे बर्ट का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, BERT, bidirectional encoder representation for transformer. So this is a encoder only model, इसमें डिकोडर नहीं है, डिकोडर को हटा दिया गया है। एंड इन जनरल आप इनकोडर डिकोडर खुद भी ट्रेन कर सकते हैं और वो अवेलेबल है। ट्रांसफार्मर जब नॉर्मल कॉल करते हैं तो दोनों ही कॉल होता है, दोनों ब्लॉक एक साथ, राइट। सो दिस वे, टाइम हो गया सर, हाँ। So we'll stop here. Let's have your tea. I will not come between you and your tea. Thank you, sir. So it is a 10 to 15 minutes tea break. After that, we will assemble again. Okay. So is there any question from the online audience or online participants?